नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 5th सेम, कोर्स कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, सेशन इम्पोर्टेंस ऑफ comparative public administration. Students, let's see in English this topic. Comparative public administration is a new concept after Second World War. First, let's see introduction. Only one on the basis of comparative study can public administration fall into the category of science. The role of comparative public administration has been influential in making public administration more scientific and effective and purposeful. Public administration has been made incentive, intensive and useful and popular by eliminating the narrowing in comparative public administration studies. Due to differences in social, economic and cultural conditions of different countries, there is also a difference in their administrative system. Through comparison, information about different cultures and environments is obtained, and it is found out what kind of factors can affect which part of an administrative system. The following advantages or merits of comparative public administration can be started or importance. First, importance or need or advantage is due to comparative studies, the field of social research has expanded, broadened and dependent, which was previously limited, narrow and macro. Second is comparative public administration has laid more emphasis on the construction and generalization of principles. Third, comparative public administration has eliminated the gap between administration and political science, which has formed close ties, and administration has become associated with the wider field of other social sciences. And other importance is for comparative public administration has adopted a scientific approach to, instead of being self-centered, it has adopted a broader approach. And fifth is the field of public administration has expanded due to analysis in comparative public administration. Sixth, comparative public administration has fully contributed to the
elimination of narrow-vid like provincialism and regionalism. Seventh is comparative public administration has emphasis on the study of environment, social, economic, cultural, political system, which give information about other social sciences and what other factors affected the administration. Eighth is due to the adoption of comparative method in public administration, students, scientists and administrator has been able to understand the administrative engagements of other countries and its field has expanded. And last importance is comparative public administration has contributed significantly in making the subject comparative यूज़फुल एंड साइंटिफिक. अब देखिए लेट्स सी इन हिंदी. आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व. ठीक है, प्रस्तावना सबसे पहले अपन देखेंगे. तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है. लोक प्रशासन को अधिकाधिक वैज्ञानिक तथा प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने में तुलनात्मक लोक प्रशासन की भूमिका प्रभावशाली रूप से महत्वपूर्ण है. तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययनों में संकीर्णताओं को समाप्त कर लोक प्रशासन को विशाल, गहन तथा उपयोगी और लोकप्रिय बनाया गया है. अलग अलग देशों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर होने से उनकी प्रशासकीय व्यवस्था में भी अंतर आता है. तुलना के माध्यम से ही विभिन्न संस्कृति और पर्यावरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है तथा यह पता लगाया जाता है कि किसी खास प्रकार के कारकों का किसी प्रशासनिक व्यवस्था के किस अंग पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है. तुलनात्मक प्रशासन के लाभ या गुण या महत्व निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला है तुलनात्मक अध्ययन के कारण सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत, व्यापक और गहरा होता है. और चूँकि पहला क्या था, ये सीमित था, संकीर्ण था, छोटा था. दूसरी जो इसकी गुण है या दूसरा जो महत्व है वो ये कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ने सिद्धांतों के निर्माण और सामान्यीकरण पर अधिक जोर दिया है. तीसरा, तुलनात्मक लोक प्रशासन ने प्रशासन व राजनीति शास्त्र के मध्य अंतर को समाप्त कर दिया है, जिससे इनमें घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं और प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के व्यापक क्षेत्र से जुड़ गया है. चौथा जो महत्व है, फोर्थ, वो है तुलनात्मक लोक प्रशासन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, इसलिए आत्म केंद्रित रहने के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है. पांचवा, तुलनात्मक लोक प्रशासन में विश्लेषण के कारण लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत हुआ है. छठा, तुलनात्मक लोक प्रशासन से प्रांतीयता और क्षेत्रीयता जैसी संकीर्णताओं को समाप्त किया गया है. अगला, तुलनात्मक लोक प्रशासन ने पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर दिया है, जिससे अन्य सामाजिक विज्ञानों के बारे में और अन्य कारक कौन कौन से प्रशासन को प्रभावित करते हैं, इन सब की जानकारी मिलती है. अगला है लोक प्रशासन में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने के कारण विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को दूसरे देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद मिलती है तथा इसका क्षेत्र व्यापक होता है. और नवा जो है, नाइन्थ, तुलनात्मक लोक प्रशासन ने विषय को व्यापकता, उपयोगिता और वैज्ञानिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है. मैं ये आशा करता हूँ
कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।